Hello, good morning. In last lecture we have discussed the first unit, that is LDE and its applications. Okay, and last point is the method of variation of parameter, finding particular integral by using MVP, that is method of variation of parameter. Today we have to discuss the new topic, that is Cauchy-Euler equation. Okay, name of the topic Cauchy-Euler equation. Cauchy-Euler equation. Okay, form of the equation, form of the equation a0 x raised to n d raised to n y upon dx raised to n plus a1 x raised to n minus 1 d raised to n minus 1 y upon dx raised to n minus 1 plus dot 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 a and y is equal to f of x. Okay, here a0 a1 dot 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 a n are constant. Now look on the board. a0 x raised to n, this is coefficient of d raised to n. Okay, a0 x raised to n is coefficient of d raised to n. Here this is also coefficient of d raised to n minus 1. Okay, and this is a and this is coefficient of y. Change क्या है in first topic and this topic? Change क्या है? Here coefficient is a0 x raised to n, here coefficient is a0 x raised to n minus 1 dot dot dot, here coefficient is an. Okay, change क्या है? This equation is called the nth order linear differentiable equation with variable coefficient. Coefficient कैसा है यहाँ पे? Variable, x is variable. Okay, here also x is variable. This is called nth order linear differentiable equation, nth order linear differentiable equation with variable coefficient. With variable coefficient. चेंज क्या है यहाँ पे? क्या है? वेरिएबल कोएफिशिएंट. इन लास्ट अभी तक जो भी देखा है वहां पे क्या था? विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट कैसे? वेरिएबल. बिकॉज यहाँ पे क्या है? a0 x raised to n. Okay, this is coefficient. Here x is variable, x is independent variable. Okay, यहाँ पे क्या है? coefficient of d raised to n minus 1 is okay, this. यहाँ पे क्या है? coefficient an. Okay, तो this equation is called nth order linear differentiable equation with variable coefficient. अभी आपका टारगेट क्या है? we have to find solution of this equation. How to find solution? First convert this variable coefficient with constant coefficient. Okay, आपका टारगेट क्या होगा? First convert this variable coefficient with constant coefficient. Okay, तो how to convert this variable coefficient into constant coefficient? तो यहाँ पे क्या जाएगा? ट्रांसफॉर्म. Okay, by using this transform this equation, transform this variable coefficient into constant coefficient. This is your target. Okay, change क्या करना है हमें? Convert this variable coefficient into constant coefficient. After that, by using previous method, we have to find solution of this equation. Okay, तो देखो, for converting this variable coefficient into constant coefficient, here we have to use the transformation. क्या है transformation? Change क्या करना है आपको? Transformation. ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है? ट्रांसफर. पुट x into dy by dx
is equal to capital dy. Put x into dy by dx is equal to capital dy. Also put x square d2 y upon dx square is equal to d in bracket d minus 1 into y. Okay. Also put x cube d cube y upon dx cube is equal to d minus 1 d minus 2 into y up to dot 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 dot. Okay, this is transformation. Okay, and this equation is called Cauchy-Euler equation only if the power of x and power of d is same. यहाँ पे x का पावर एंड d का पावर क्या होना चाहिए, सेम. एट दैट टाइम वी हैव टू कॉल Cauchy and Euler equation. Okay, otherwise this is called nth order linear differentiable equation with variable coefficient. Cauchy-Euler कब होगा, जब द पावर ऑफ x एंड पावर ऑफ d सेम रहेगा. ओके, तब हम क्या बोलेंगे, दिस इज Cauchy-Euler. ओके, Cauchy-Euler. तो यहाँ पे क्या है, पुट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई. ऑल्सो एक्स स्क्वेयर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी माइनस 1 into y. Also x cube d cube y upon dx cube is equal to d minus 1 d minus 2 into y. For हाँ, यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2. यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1. Also ओके, फॉर 4 सपोज यहाँ पे आ गया 4, तो यहाँ पे क्या जाएगा d. Also d minus 1, also d minus 2, also d minus 3 up to nth. Okay, and here capital D is d by dz. Capital D is d by dz. ओके, ऑल्सो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म है, वो है पुट x इज इक्वल, आई विल राइट हियर, वो फर्स्ट में चाहिए, पुट x इज इक्वल टू ई रेस टू जेड. पुट x इज इक्वल टू ई रेस टू जेड, दैट इज z इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, लॉग ऑफ x. ओके, जहाँ पे भी x आएगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू ई रेस टू जेड और z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू पुट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई, ऑल्सो दिस. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे क्या है, हाँ देखो यहाँ पे क्या है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, तो हम क्या करें, replace this independent variable that is x in the form of z. How to convert, put x is equal to e raised to z. तो यहाँ पे कहाँ पे भी आपको x दिख रहा है x, तो वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, e raised to z. ओके, और बाकी प्लेसेस पे x into dy by dx dy, also this. ओके, बाकी as it is. This is transformation. Okay, now example on the topic. Cauchy-Euler इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन 100% आता है, ईच एंड एवरी एग्जाम. तो देखो एग्जाम्पल, हेलो, एग्जाम्पल ऑन द टॉपिक Cauchy-Euler इक्वेशन. एग्जाम्पल फर्स्ट, सॉल्व एक्स स्क्वेयर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन लॉग ऑफ x. ओके, नाउ लुक ऑन द बोर्ड, दिस इज Cauchy-Euler लीनियर इक्वेशन. Cauchy-Euler क्यों, बिकॉज यहाँ पे x का पावर क्या है 2, d का पावर क्या है 2, यहाँ पे x का पावर क्या है 1, d का पावर क्या है 1. ओके, दिस बिलोंग्स टू Cauchy-Euler डायरेक्टली. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ट्रांसफर दिस इक्वेशन इनटू कांस्टेंट कोएफिशिएंट. गिवन इक्वेशन कैसा है, गिवन इक्वेशन इज विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट. फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू कांस्टेंट कोएफिशिएंट. ओके, हाउ टू कन्वर्ट, बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन. सपोज दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, एग्जांपल फर्स्ट solution. Suppose this is equation first. Put x is equal to e raised to z. Put x is equal to e raised to z implies z is equal to log of x. Also put, अभी हमने देखा था x into dy by dx इज इक्वल टू डी वाई. ओके, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या पुट करना है, डी वाई. ऑल्सो पुट एक्स स्क्वेयर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी माइनस 1 इंटू वाई. ओके, ऑल्सो हियर कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी इज इक्वल टू डी बाई डी जेड. कैपिटल डी इज डी बाई
dz. Then equation 1 becomes, put all these values in equation 1, okay, put in 1, equation 1 becomes equation 1 becomes क्या जाएगा, एक्स स्क्वेयर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, उसकी जगह हाँ क्या पुट करना है, डी माइनस वन इंटू वाई, तो क्या जाएगा वहां पे डी माइनस वन इंटू वाई, ओके, माइनस 3 एज इट इज, यहाँ पे जो 3 है एज इट इज, फॉर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या पुट करना है, फॉर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज डी वाई माइनस 5y एज इट इज, माइनस 5y एज इट इज, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वेयर, हियर वी हैव टू रिप्लेस एक्स एज ई रेज टू जेड, एक्स एज ई रेज टू जेड, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, द स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, एक्स स्क्वेयर क्या जाएगा, ई का पावर 2z, ई का पावर 2z, तो क्या मिलेगा यहाँ पे ई रेज टू 2z, ई रेज टू 2z इंटू साइन लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, लॉग ऑफ एक्स इज जेड, लॉग ऑफ एक्स इज जेड, ओके, लॉग ऑफ एक्स इज जेड. नाउ सॉल्व दिस, सिंप्लीफाई दिस ब्रैकेट, क्या जाएगा यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई, ओके, माइनस डी वाई माइनस 3dy माइनस 5y इज इक्वल टू ई रेज टू 2z इंटू साइन जेड, ओके. देन आफ्टर दैट टेक y कॉमन, टेक y कॉमन, यहाँ पे y है, यहाँ पे y, यहाँ पे y है, टेक y कॉमन, क्या मिलेगा यहाँ पे डी स्क्वेयर, देखो यहाँ पे माइनस डी माइनस 3d, माइनस डी माइनस 3d क्या जाएगा माइनस 4d, यहाँ पे माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू 2z साइन जेड, ओके, वी गेट दिस. नाउ दिस इज 5 of d into y is equal to f of z, okay, just like 5 of d into y is equal to f of x, 5 of d into y is equal to f of x, यहाँ पे चेंज क्या है, f of z, f of z, okay. We have to find the solution of this equation, that is first we have to find CF, after that we have to find PI, okay. तो for CF क्या मिलेगा, for CF इक्वल टू जो भी है पुट इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा डी स्क्वेयर माइनस 4d माइनस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ओके. नाउ this bracket into y is equal to 0, this bracket into y is equal to 0, but y is not is equal to 0 because y is solution, okay. तो 5 of d is equal to 0, this is called auxiliary equation, तो क्या जाएगा auxiliary equation is d square minus 4d minus 5 equal to 0, okay. This is second order equation, this is quadratic equation in d, okay. We have to find roots by using कैल्सी और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, क्या मिलेगी उसके रूट्स, दिस इंप्लाइज सपोज दिस इज डी स्क्वेयर प्लस डी माइनस 5d माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ओके. फ्रॉम फर्स्ट टेक d कॉमन, क्या जाएगा d इन ब्रैकेट d प्लस 1, ओके. फ्रॉम दिस टेक माइनस 5 कॉमन, क्या जाएगा यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा d, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1 बिकॉज माइनस 5 आउटसाइड में है इक्वल टू 0, ओके. दिस इज d प्लस 1, ओके. टेक कॉमन d प्लस 1, क्या बचेगा d प्लस 1 इंटू d माइनस 5 इक्वल टू 0, वी गेट 2 रूट्स. वन रूट क्या जाएगा d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड वन रूट d माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज d प्लस 1 इक्वल टू 0 और d माइनस 5 इक्वल टू 0, वी गेट d is equal to minus 1, d is equal to 5. These are the roots. Then we have to write CF. How to write CF? This belongs to case number first, okay. Case number first, roots are real number and different, तो CF क्या जाएगा, CF is equal to C1 e raised to, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे क्या है z, तो क्या जाएगा e का पावर माइनस z प्लस C2
e का power 5z. This is your CF. This is your CF. Okay, this is your CF. Okay, now we have to find pi. Now we have to find pi. How to find pi? We know that the formula of pi is equal to क्या है फॉर्मूला 1/5 of d f of z. 1/5 of d f of z. Okay, 1/5 of d f of z. Then phi of d क्या है यहाँ पे? phi of d is this. Okay, this is your phi of d. देखो this is phi of d, this is f of z. तो क्या जाएगा phi of d? Phi of d is 1/d square minus 4d minus 5. ओके, एंड f of z क्या है? e raised to 2z sin z. e raised to 2z sin z. ओके, देन हाउ टू फाइंड pi? हाउ टू फाइंड pi? देखो यहाँ पे f of x बिलोंग्स टू विच केस? विच शॉर्टकट केस? दिस बिलोंग्स टू शॉर्टकट केस नंबर 5th. वी हैव टू फाइंड pi when f of x is e raised to ax. e raised to ax into phi. e raised to ax into phi. Okay, by using this case we have to find pi. Okay, I will solve this on here. तो क्या जाएगा वो? pi is equal to 1/d square minus 4d minus 5 e raised to 2z into sin z. ओके, तो क्या करना है? फर्स्ट फिनिश द वर्क ऑफ e raised to ax. ओके, तो यहाँ पे क्या है? e raised to 2z into v. ओके, तो टेक दिस आउटसाइड e raised to 2z. क्या मिलेगा यहाँ पे? e raised to 2z आउटसाइड में आ गया. ओके, 1/1 चेंज क्या करते हैं? इन phi of d, दिस d is replaced by d plus a. d is replaced by d plus a. तो क्या जाएगा? a की वैल्यू क्या है? 2. तो d plus a क्या मिलेगा यहाँ पे? d plus 2. d is replaced by d plus 2. तो क्या जाएगा? d plus 2 ब्रैकेट स्क्वायर minus 4d plus 2 minus 5 into sin of z into sin of z. Okay, then solve this. This is e raised to 2z 1/. Simplify this by using a plus b ब्रैकेट स्क्वायर. क्या मिलेगा? d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 4d माइनस 8 माइनस 5 इंटू साइन ऑफ z. ओके, यूज a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. क्या जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस b स्क्वायर. माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा? माइनस 4d माइनस 8 माइनस 5 साइन z. नाउ सिंप्लीफाई दिस. दिस इज e raised to 2z 1/. देखो बोर्ड पे, दिस इज 4d, दिस इज 4d. माइनस प्लस गेट कैंसल, माइनस प्लस गेट कैंसल. ओके, यहाँ पे क्या बचेगा? d स्क्वायर. d स्क्वायर यहाँ पे क्या है? माइनस 8 माइनस 5. माइनस 8 माइनस 5 क्या जाएगा? माइनस 13. माइनस 13 प्लस 4. माइनस 13 प्लस 4 क्या बचेगा? माइनस 13 प्लस 4. This is minus 9 into sin of z into sin of z. Then last step by using shortcut number केस नंबर सेकंड. यहाँ पे क्या है? d स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या है? sin ax. ओके, केस नंबर सेकंड. यहाँ पे क्या है? d स्क्वायर. यहाँ पे क्या है? sin z. a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1. sin ax जस्ट लाइक sin ax. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1. तो इन phi of d, d स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस a स्क्वायर. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1. तो क्या मिलेगा वो? दिस इज e raised to 2z. d स्क्वायर की जगह क्या जाएगा? माइनस 1 माइनस 9 साइन ऑफ z एंड दिस इज योर pi. क्या जाएगा? pi माइनस 1 माइनस 9, दिस इज माइनस 10. तो क्या जाएगा? pi इज इक्वल टू e raised to 2z इंटू साइन z divided by minus 10. This is your pi. Okay, then after that we have to write the complete solution or general solution. Complete solution or general solution. How to write general solution? Y is equal to cf plus pi. Y is equal to cf plus pi. Then the general solution is y is equal to cf plus pi.
y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो क्या मिलेगा, सी एफ क्या है हमारे पास, C1 ई रेस टू माइनस जेड प्लस C2 ई रेस टू 5z एंड पी आई क्या है, पी आई इज -1/10 ई रेस टू 2z साइन z, ई रेस टू 2z साइन z, दिस इज योर पी आई। देखो अभी जो भी एग्जाम्पल दिया था, दिस एग्जाम्पल बिलोंग्स टू x एंड y, दिस एग्जाम्पल बिलोंग्स टू x एंड y, यहाँ पे क्या है z। तो लास्टली कन्वर्ट दिस z इन द फॉर्म ऑफ x, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या करना है, लास्टली कन्वर्ट दिस z इन द फॉर्म ऑफ x। क्या मिलेगा, रिप्लेस z एज, z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, रिप्लेस z बाय लॉग ऑफ x। तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू C1 ई रेस टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस C2 ई रेस टू 5 log of x -1/10 ई रेस टू 2 इंटू जेड की वैल्यू log of x एंड साइन जेड की वैल्यू log of x। ओके, नाउ सॉल्व दिस। यहाँ पे क्या जाएगा, दिस -1 गोज टू पावर ऑफ x, log एंड e गेट कैंसल। तो क्या बचेगा C1 x रेस टू -1 प्लस यहाँ पे भी सेम C2, दिस 5 गोज टू पावर ऑफ x, क्या हो जाएगा x रेस टू 5, e एंड log गेट कैंसल। तो क्या जाएगा x रेस टू 5 -1/10। ओके, दिस 2 गोज टू द पावर ऑफ x, क्या जाएगा x स्क्वायर, e एंड log गेट कैंसल। तो क्या बचेगा x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ log x, दिस इज योर फाइनल आंसर, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ओके, क्या करना है, समझ में आ गया सबको। तो कॉची आइलर इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। हाउ टू आइडेंटिफाई कॉची आइलर, x का पावर d का पावर सेम है, देन आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, रिप्लेस और पुट x इज इक्वल टू e का पावर z, दैट इज z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x एंड बाकी x इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या पुट करना है, आल्सो x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो क्या पुट करना है, ठीक ठाक पुट करना है ऑल द वैल्यूज, देन वी गेट इक्वेशन with constant coefficient, then find CF and PI by using previous method and lastly replace value of Z, we get required answer. Okay.